ভারতের গোপন নথি গোপনে পাচার হয়ে যাচ্ছে, ভাবতে পারছেন? তা আবার কোথায়? প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে, যাদের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই আমাদের একটা রীতিমতো লড়াই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়, যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়, সেইখানে স্পাইগিরি করছেন কে না রিয়া। ভারত থেকে গোপন নথি শত্রু দেশ পাকিস্তানে পাঠানোর অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করে গুজরাট এটিএস। পোরবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম পঙ্কজ কোটিয়া। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে এক পাকিস্তানি মহিলাকে এই সব গোপন তথ্য পাচার করেছিল ধৃত পঙ্কজ। পঙ্কজের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে স্টেট ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে পাওয়ার রিপোর্টে অনেক তথ্য উঠে এসেছে। জানা গিয়েছে গত 8 মাসে অভিযুক্ত পঙ্কজ কোটিয়া প্রতি 2 থেকে 3 দিনে একজন পাকিস্তানি মহিলার সঙ্গে কথা বলতো। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিএনএস এর একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গুজরাটের এটিএস এসপি কে সিদ্ধার্থ জানান, গুপ্তচর বৃত্তের মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসপি কে সিদ্ধার্থ আরও বলেন, আমরা তথ্য পেয়েছি যে পঙ্কজ কোটিয়া নামে এক ব্যক্তি পোরবন্দর থেকে পাকিস্তানি স্পর্শকাতর তথ্য স্থানান্তর করছে। রিয়া নামে এক পাকিস্তানি মহিলার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। তিনি কোস্টগার্ড জাহাজ এবং তাদের গতিবিধি সম্পর্কিত সংবেদনশীল তথ্য স্থানান্তর করতেন। এই কাজের জন্য অভিযুক্ত গোয়েন্দা পঙ্কজ কোটিয়াও টাকা পেয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। গুজরাটের এটিএস এসপি কে সিদ্ধার্থ বলেছেন, গুপ্তচর বৃত্তের অভিযুক্ত পঙ্কজ কোটিয়া 11টি বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মোট 26,000 টাকা পেয়েছেন। এটি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মামলায় এবং বিএনএসের 61 এবং 148 ধারা অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় হানি ট্র্যাপের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন এটিএস এর এসপি কে সিদ্ধার্থ। তিনি বলেন, এটা মধুচক্রের ঘটনা নয়। ধৃত ব্যক্তি আর্থিক লোভের জন্যই এটি করেছিলেন। মহিলাটি উল্লেখ করেছেন যে তিনি একজন পাকিস্তানি এজেন্ট এবং পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে কাজ করেন এবং পঙ্কজ কোটিয়া ভালোভাবে জানেন যে তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীর একজন আধিকারিককে এই গোপন তথ্য দিচ্ছেন। কে সিদ্ধার্থ এসপি এটিএস এর তিনি কি বলছেন শোনাব আপনাদের। गुजरात एटीएस में आज एक एस्पिनोज केस का केस रजिस्टर किया गया, जिसका फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसा है कि हमको एक बातमी मिली है कि कोई एस्पिनेज एक्टिविटी पोरबंदर के तरफ से पंकज कोटिया नाम का एक आदमी के तरफ से हो रहा है, जिसके रूप में हमारे डीवाईएसपी वीरजीत, हमारा अनाम पीएसआई राहुल गरचर और एक वायरलेस पीएसआई भौमिक का टीम बनाया था इसका प्राथमिक तपास के लिए, जिसके दौरान उनका पूछपरछ किया गया जो अभी का आरोपी का, और उनका मोबाइल सीज किया गया था, जिसके अंदर से हमको एफएसएल को भेजा गया था, जिसके अंदर से हमको ये पता चला कि उसके जो मोबाइल है उसके माध्यम से रिया करके एक पाकिस्तानी लड़की के रिया उनके नाम बताया गया था, जो उनके कॉन्वर्जेशन में था। पाकिस्तान के रहने वाली है, क्योंकि उनके आईपी जब रिजॉल्व किया, जहाँ से इन दोनों का व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जब बात किया था, उसमें ये पता चला कि वो जो आईपी है वो पाकिस्तान की है। तो इससे हमको ये पता चला कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता था, जिसका किस इन्फॉर्मेशन देता था ये उसमें हमारे टेक्निकल एनालिसिस और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो कोस्ट में जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स वहाँ खड़े थे, वहाँ मूवमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन जो अगर पाकिस्तान को मिलती है तो सेंसिटिव हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता था। इसके अलावा लास्ट 8 महीने में इसका लगभग 2-3 दिन में एक बार बातचीत चलती थी, और उसके अलावा 11 बार अलग अलग बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में 26,000 का अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया। इस हिसाब से हमको पता चलता है कि ये वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस बनता है। उस हिसाब से हमने सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 बीएनएस के हिसाब से हमने एक केस दाखिल किया। सर, आरोपी बैकग्राउंड શું છે? आरोपी का नाम है पंकज कोटिया, वहाँ तंबाकू फैक्ट्री में काम करता है, रोल करने का। સર, કેટલા સમયથી આ માહિતી મોકલતો હતો? આ રિયા સાથે કોન્ટેક્ટમાં કેવી રીતે આવ્યો? ये कांटेक्ट में आया था फरवरी मार्च में आया था, और लगभग लास्ट 8 मंथ से उसके साथ कांटेक्ट में है, ओनली सोशल मीडिया के थ्रू। तो सामने वाला जो आपने नाम बताया वो हनी ट्रैप है, ओरिजिनल आइडेंटिटी है या फिर उसकी नहीं, उसका 99% हम 100% हम कहा जा सकता है कि वो
हनी ट्रैप भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बात नहीं चली, ये कम्प्लीटली मॉनेटरी बेनिफिट उसको दे रहे थे। और उसके हिसाब से उसने सामने से बोला भी था कि मैं पाकिस्तान के एजेंट हूँ, पाकिस्तान के रहने वाली हूँ, पाकिस्तान नेवी में काम करती हूँ, उसके हिसाब से उनको चाहिए। तो इसका पूरा नॉलेज था कि ऐसा वो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर को ये दे रहा था। एज ऑफ नाउ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमको इतना ही पता चला कि ये भेजता था। जो बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि 2-3 अलग तरीके से हम देख रहे हैं, पर एज ऑफ नाउ ऐसा कोई लीड नहीं मिला। सर अभी ये पाकिस्तान गया हो या ऐसा कुछ मूवमेंट मिला है? नहीं, ये इंडियन है और पाकिस्तान अभी तक इसका ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। सर सभी की माहिती है, दूसरे कुछ एजेंसी की भी माहिती दे रहा था। कोस्ट गार्ड का शिप्स का जो मूवमेंट है, और वहाँ पोरबंदर में जो डॉक्ड है उसका નામ બેસતા માહિતી સર, કેવી રીતે મછુઆરો એકત્રિત કરતો હતો અને આ જે માહિતી લીક કરવાથી કેટલું नुकसान થઈ શકે છે? ऑब्वियसली अगर हमारे शिप्स का स्ट्रैटेजिक लोकेशंस उनको पता चलता है, ऑब्वियसली हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस में होता है, वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ये डैमेज करता है। अगर हमारे एनिमी कंट्री को ये सारे इन्फॉर्मेशन उनको पता चले तो। क्या लेन देन क्या होती थी सर? 26,000 इनके बैंक अकाउंट में लास्ट 5 to 8 मंथ्स में इनके बैंक अकाउंट में अलग अलग 2,000, 3,000, 4,000 हिसाब से इनको आया गया। 11 अलग सर ट्रांजैक्शन। फिशिंग बोट में कहीं गया हो मिड सी में, या वहाँ पे कुछ ऐसा शिप गार्ड या कोस्ट गार्ड या और एजेंसी की कुछ तस्वीरें कुछ भेजी हो, ऐसा कुछ है? एज ऑफ नाउ ऐसा इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आया, पर उस तरीका भी हम देखेंगे। सर दोनों के बीच बातचीत किस माध्यम से हुई है, कितनी बार हुई है सर? व्हाट्सएप में मेजॉरिटी व्हाट्सएप के थ्रू ही हुआ है। हिंदी में ही बात करते थे, पर टाइप करते थे इंग्लिश में। सर ये दोनों ने जो डिटेल दी है, फोटो वीडियो दिया है या फिर नाम शेड्यूल वगैरह दिया है, क्या दिया है? एक्चुअली क्या हुआ, उनका जो भी भेजा है वो सारे नाम और उनका ट्रांजैक्शंस अभी भी बाहर आना है, तो पर अभी तो हमको पता है कि शिप्स का नाम भेजा गया है। सर सिर्फ शिप के नाम गए हैं या जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी है उनके भी नाम, फोटोग्राफ, उनकी फैमिली के रिलेटेड कुछ डिटेल ऐसा कुछ? एज ऑफ नाउ ऐसा माहिती हमारे पास नहीं हुई है, पर इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हमको बता दिया जाएगा। सर सामने वाला जो व्यक्ति था उससे इसकी टेलीफोनिक कभी बात हुई है कि नहीं? नहीं, एज ऑफ नाउ अगेन मैं अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ऐसा निकल के नहीं आया कि इन दोनों के बीच में बात हुई है। पर हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस कॉल का है कि क्या एग्जैक्टली बात करते थे, अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चला। फर्स्ट बार किस तरह से कांटेक्ट किया गया पंकज का एजेंट की तरफ से? ये एक्चुअली फेसबुक के थ्रू परिचय हुए थे। फेसबुक के बाद उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप के माध्यम से फिर बात करना शुरू किया। নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।